بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے جشن آزادی کی۔ کراچی میں یوم آزادی کی تقریبات کا رنگا رنگ نمایاں۔ کراچی کے ساحل پر نشان پاکستان بھی سبز ہلالی پرچموں اور ملی نغموں سے جگمگاتا رہا۔ ہر زبان پاکستان زندہ باد سے گونجتی رہی۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نشان پاکستان پر یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز قومی پرچم کشائی اور قومی ترانے سے ہوا۔ ڈی ایچ اے کے زیر انتظام تقریب میں شہریوں، طلباء، کاروباری شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یوم آزادی کے موقع پر کار اور ہیوی بائک ریلی بھی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سبز ہلالی پرچم تھامے شہریوں کا جوش، ملی نغموں کی گونج اور پاکستان زندہ باد کے نعروں نے فضا کو حب الوطنی کے رنگ میں رنگ دیا۔ تقریب میں ڈی ایچ اے اسکولز کے طلباء نے ملی نغموں اور خوبصورت ٹیبلوز کے ذریعے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بچوں کی پرفارمنس نے تقریب میں موجود شرکاء کا جوش مزید بڑھا دیا۔ پاکستان زندہ باد، آج بہت مزہ آ رہا ہے ادھر، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد میں 1 کلاس میں میں کہنا چاہوں گی پاکستان زندہ باد، آئی لو پاکستان۔ یوم آزادی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا اور یہاں ہر جگہ ماشاءاللہ ہریالی ہے۔ پاکستان بہت اچھا ہے، پاکستان زندہ باد۔ ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریٹر نے تقریب میں شریک افراد کی حوصلہ افزائی کی اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے وطن کے شہداء، مسلح افواج اور قوم کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ ساحل کراچی پر یوم آزادی کا یہ جشن صرف ایک تقریب نہیں بلکہ نئی نسل کی جانب سے پاکستان سے محبت اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار بھی ہے۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر سیاسی، سماجی اور حکومتی شخصیات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر عمائدین شہر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے 90ویں جشن آزادی کے موقع پر مزار قائد پر سیاسی اور حکومتی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ سندھ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلمبند کیے۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم قائد اعظم کا خواب دیکھا اور اپنی جدوجہد سے اسے حقیقت بنایا۔ اور جو خواب دیکھا تھا بر صغیر میں قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، اس کی تعبیر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جو خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک آزاد خود مختار ریاست ہوں گے جہاں ہمارا اپنا دفاعی نظام ہوگا، تعلیمی نظام ہوگا، صحت کا نظام ہوگا، معیشت کا نظام ہوگا، سیاست کا نظام ہوگا، معاشرت کا نظام ہوگا۔ تو الحمدللہ اس خواب کی تعبیر ہمیں کافی حاصل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ یوم آزادی وطن عزیز سے جدید عہد وفا کا دن ہے، ہمیں متحد ہو کر ملک کو مزید آگے لے کر جانا ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے، جیسے کہ گورنر صاحب نے بھی بتایا کہ جو قائد اعظم کے اصول ہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان پہ عمل پیرا رہیں، اپنے سب متحد رہیں، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ مملکت خداداد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی۔ جب ملک کے اندر سیاسی استحکام آ گیا ہے، ان ٹرمز آف دشمن کی جو سازشیں تھیں اس کو بھی ہم نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی سطح پر یہ جو 25 کروڑ افراد ہیں ان کے حالت زار میں بہتری لانے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے نئے انتظامی یونٹس اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا ہوگا۔ نئے انتظامی یونٹس اور مقامی خود مختاری بلدیاتی اداروں کو مؤثر، باوسیلہ اور بااختیار بنائیں۔ آپ دیکھیں ملک کی ترقی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے۔ تمام رہنماؤں نے بانی پاکستان کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کراچی بندرگاہ پر جشن آزادی کی پروقار تقریب، قومی پرچم کشائی سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ تقریب میں وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سمیت کے پی ٹی حکام اور افسران نے شرکت کی۔ وزیر بحری امور نے ملک کی ترقی، معاشی خود مختاری اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اقصی شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ قومی پرچم کی سربلندی
सब्ज हिलाली परचम को सलामी। कराची बंदरगाह पर जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब में मिली जज्बे से सरशार शुरा की शिरकत। कराची बंदरगाह पर जश्न यौम आज़ादी की तकरीब का बाकायदा आगाज परचम कुशाई से हुआ। इस मौके पर वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। हमारे इरादे मजबूत हैं, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। मेरा ये ईमान है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को मिलके मजबूत और मुस्तहकम मुल्क भी बनाएंगे। और जहाँ तक आप आज जिस जगह पे बैठे हैं, देखिए कि केपीटी में बल्कि हमारी सारी पोस्ट पे किस तरह हमारी टीम ने और मिल के हमने काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अदारे जो हैं इनकी रैंकिंग्स बेहतर हो गई। केपीटी चेयरमैन एडमिरल शाहिद अहमद का कहना था कि मुल्क की खातिर इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा करना होगा और आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज इस सब सलामी परचम के साए तले अहद करें कि हम आज़ादी को सिर्फ एक जश्न की तरह नहीं मनाएंगे। सीने पे लगाने वाला ये झंडा सिर्फ सीने पे नहीं लगेगा, ये हमारे दिल के अंदर लगेगा। हम इसे दयानत, खिदमत, कारकर्दगी और कौमी तरक्की में भी ढालेंगे, और हम इस हज़्म के लिए पुरअज़्म हैं इंशाअल्लाह। जश्न आज़ादी की इस तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की, खुद मुख्तारी और मुआशी इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर बहरी उमूर का कहना था कि हमारी मंजिल एक मजबूत, खुददार और खुशहाल पाकिस्तान है। आगे बढ़ें, आपको बताएं वतन अजीज के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मुल्क में रकूम भेजने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द ही एक स्कीम का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को अस्करी और सियासी सलाहियत दिखाने के बाद पाकिस्तान मुआशी सलाहियत दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्टेट बैंक में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का अहवाल वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। स्टेट बैंक में यौम आज़ादी की तकरीब का आगाज गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से की जाने वाली परचम कुशाई से हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में मुल्की मईशत में होने वाली पेशरफ और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2026 में महंगाई की शरह 7.1% रही, जबकि माली साल 2026-27 में महंगाई की शरह 5.7% तक रहने की तवक्का है। माली साल 2026 में पाकिस्तान का महंगाई का तनासब 7.1% रहा है। इस स्टेट बैंक महंगाई को दरमियानी मुद्दत यानी 5 से 7% के हदफ में बरकरार रखने के लिए भी कोशां है, जबकि मुआशी सरगर्मियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। तकरीब में कौम के नौनिहालों ने खूबसूरत मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया और पाक बहरिया के बैंड ने मिली नगमों की धुनों के जरिए जज्बे हुब्बुल वतनी को उजागर किया। स्टेट बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक को सलामी पेश की। स्टेट बैंक म्यूजियम में मुनक्किद की गई नुमाइश का गवर्नर स्टेट बैंक ने इफ्तिताह किया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानी के लिए खुसूसी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। रेमिटेंसेस के ऊपर मैं खासकर बात करना चाहता हूं कि अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम हमारे जो रेमिटेंस सेंडर्स हैं वहाँ से जो पैसे भेज रहे हैं, हमारे जो डायस्पोरा है, बाहर हमारे भाई जो काम करते हैं और वो यहाँ पे रेमिटेंस तरसीलात ज़र भेजते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम हम लेके आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की, माली इस्तेहकाम और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बहरिया टाउन में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। 100 मीटर बुलंद फ्लैग पोल पर कौमी परचम लहराया गया, जबकि जश्न आज़ादी के मौके पर सोलर सिस्टम से हाइब्रिड EV14 गाड़ी भी मुतारिफ कराई गई है। मोहम्मद दामाद की रिपोर्ट देखिए। सब्ज हलाली परचम की सरबुलंदी, कौमी जज्बे से सरशार चेहरे और वतन से मोहब्बत का इजहार। बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान के 69वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब ने समा बांध दिया। तकरीब का आगाज़ 100 मीटर बुलंद फ्लैग पोल पर कौमी परचम लहरा कर किया गया। कौमी परचम की सरबुलंदी के बाद कौमी तराना पढ़ा गया, जबकि बहरिया टाउन सिक्योरिटी की जानिब से शानदार परेड भी पेश की गई।
जश्न आज़ादी के मौके पर बहरिया टाउन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक नया कदम उठाया। EV14 हाइब्रिड गाड़ी मुतारिफ कराई गई, जिसे सोलर सिस्टम के साथ हाइब्रिड किया गया है। बहरिया टाउन के मुताल्लिका अफसरान के मुताबिक गाड़ी को 14 अगस्त की तकरीब के लिए सिर्फ 13 रोज़ में तैयार किया गया। गाड़ी में रवायती इंजन और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि 60 किलोवाट आवर बैटरी तकरीबन 150 किलोमीटर तक रेंज फराहम करती है। सोलर सिस्टम के ज़रिए मज़ीद तकरीबन 15 किलोमीटर रेंज हासिल होने का दावा किया गया। इस पे की फीचर्स में है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है विद द बूस्ट एक्सटेंडर ऑफ सोलर पैनल। इसकी रेंज 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी जो सी मेन हाईलाइट यही है कि ज़ीरो एमिशन के ऊपर है, इसमें कोई इंजन नहीं है और ये कोई फ्यूल नहीं है, और इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो 16 किलोवाट का है, जो रेंज देगा हमें 150 किलोमीटर की। तकरीब में शरीक शहरियों का कहना था कि आज़ादी हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। हमने सिर्फ इस नेमत की कदर करनी चाहिए, बल्कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, हम बच्चों के साथ आते हैं, सारी फैमिली एंजॉय करती है। सुबह से कल से तैयारियाँ की हुई थी। इस आज़ादी को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने घरों को सजाना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वो जगह ही सजानी चाहिए। झंडियाँ भी लगाए, बैलून भी लगाए, बहुत अच्छे से सजाया। फुल तैयारी। बिल्कुल आज़ाद है और इंशाल्लाह आज़ादी रहेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जश्न आज़ादी की इस तकरीब ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया। तकरीब में शरीक हर उम्र के अफराद का पैगाम वाज़ेह था कि आज़ादी सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है, जबकि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अमजद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। वेलकम बैक। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का कारोबार बंदिश का ऐलान कारगर साबित। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन ₹1.34 से बढ़ाकर मजमूई मार्जिन ₹10 कर दिया। 8% का मुतालबा करने वाली PPDA ने ₹1.34 लेने के बाद हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। इकदाम पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन ₹10 कर दिया, जिसके बाद डीलर्स ने हड़ताल मौखर कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तलखी के बाद वजीर पेट्रोलियम ने टेलीफोनिक राब्ते में इत्तला दी कि वजीर आज़म से डीलर मार्जिन में ₹1.34 के इजाफे को मंजूर करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यौमिया कीमतों में रद्द-बदल से मुतालिक भी वजीर आज़म को नई समरी भिजवा दी गई है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बेहतर होने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले की तरह 7 या 15 रोज पर मुतय्यन की जा सकती हैं। लेकिन आज मिनिस्टर साहब का 1:18 पे फोन आया कि उस दिन जो कुछ हुआ उसे भूलिए, कुछ टेंशन थी, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ₹1.34 जो हमारा मार्जिन पेंडिंग था, उन्होंने आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूव करके और वो लेके गए। अभी ACC की मीटिंग हो गई है उसके अप्रूवल के लिए, और आज वो हमारा अप्रूव हो गया। चेयरमैन PPDA ने कहा कि डीलर्स के 8% मार्जिन के मुताबिक पर एक मुश्तरका कमेटी बनाई जो 30 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसका फैसला आज समरी बढ़ गई है, मूव गई है। 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में कम अज कम मेरे ख्याल के बाद 2 हफ्ते लगेंगे उसको, और वो 2 हफ्ते तक भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी करें। नायब चेयरमैन तारिक हसन ने कहा कि 3 साल से मार्जिन न मिलने के सबब हुकूमत के पास डीलर्स के $50 बिलियन रुके हुए हैं। तो चेयरमैन साहब ने उनसे ये कहा कि हम पिछले 3 साल से हमारा $1.34 के साथ $4.5 बनते हैं, वो तकरीबन $50 मिलियन बनते हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप के डीलर्स का अभी तक हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। नायब चेयरमैन अनवर कमाल ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करने के लिए 23 मार्च 2027 तक मोहलत दी और ये जिम्मेदारी और MCs पर आयद की है। मुल्क भर में 14,000 पेट्रोल पंप्स में से सिर्फ 10% पंप्स डिजिटलाइज हैं। सिंध असम्बली में जश्न आज़ादी के मौका पर खुसूसी इजलास हुआ। स्पीकर उवैस कादिर शाह ने अरकान असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। 1943 की तारीखी करारदाद पाकिस्तान को एक बार फिर मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। इजलास के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। तारीखी ऐवान, तारीखी करारदाद और आज़ादी के नए अज़म। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर सिंध असम्बली में खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। 1943 में एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई, उन बड़ी शख्सियतों ने वो करारदाद मंजूर करवाई। उस सोच को हमें सलाम करना चाहिए, जिस सोच की बदौलत आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं।
स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह ने अरकान असेंबली के हमरा परचम कुशाई की, जबकि इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इजलास में 1943 में सिंध असेंबली से मंजूर होने वाली करारदाद पाकिस्तान को दोबारा ऐवान में पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन जमील सुमरो ने करारदाद ऐवान में पेश की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अरकान असेंबली ने खिताब किया और क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। 1940 को करारदाद पाकिस्तान अगर मंजूर हुई थी तो वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मंजूर हुई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आज़म का लक़ब मिला था वो इसी जद्दोजहद की बुनियाद पे मिला था, और हमारा नारा था क्या, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कायदे आज़म साहब का जो मैसेज था वो क्लियर एक विजनरी लीडर की तरह था कि आप सब बराबर हैं, आप कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। खुसूसी इजलास में यंग पार्लियामेंटेरियंस की पुरजोश तकारीर ने भी अरकान असेंबली की तवज्जो हासिल की, जबकि तकारीर के दौरान ऐवान डेस्क बजाने से गूंज उठा। ये जान तो इतनी वंजनी है, मेरे साहब ने बोला ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, वो जिस मक्तल में गया वो मक्तल शाल सलामत। जूनियर सरदार शाह वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। बादशाह ऐवान ने मुतफ़क़ा तौर पर 1943 की करारदाद पाकिस्तान को दोबारा मंजूर कर लिया, जिसके बाद स्पीकर उवैस कादिर शाह ने मुख्तलिफ जमातों के अरकान असेंबली के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध असेंबली में खुसूसी इजलास के दौरान क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और कुर्बानियों को याद करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी।